Assalamu alaikum grade 9. How are you? I hope all of you are fine. I hope all of you are safe. I hope all of you are healthy. And I hope all of you are studying and going to school regularly. Faiza Nadeem here with your English lessons. What we are going to do? We are going to do the comprehension question answers and the vocabulary exercise of Unit 1, The Savior of Mankind. Before starting today's lesson, I want to ask you a similar question that I ask every day in every lecture. Are you studying? Have you made up your academic schedule? Okay, do it. Let's start today's lesson. Ji, what is the board telling you? The board is telling you that we are going to do question answers of Unit 1, The Savior of Mankind. And who is the Savior of Mankind? हमारे प्यारे नबी, हम सबके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और एज अ मुसलमान जब हम अपने नबी का नाम सुनते हैं तो हम उन पे दुरूद भेजते हैं. सबसे छोटा दुरूद कौन सा है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और सबसे अफजल दुरूद इब्राहिम जो आप नमाज में पढ़ते हैं. नमाज का दुरूद सबसे अफजल दुरूद है. और जब भी आप नबी का नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने कहना ही कहना है, लेकिन नमाज का दुरूद भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है. जज़ाकल्लाह फॉर रिसाइटिंग, मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स. व्हेनेवर यू आर फ्री रिसाइट दुरूद. और फिर देखना ज़िंदगी की कितनी बरकतें नाजिल होंगी, रब्बुल आलमीन कितने खुश होंगे. ठीक है, चलें हम शुरू करते हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के क्वेश्चन आंसर से. पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज अरेबिया? व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन द फ्रेजेस. ठीक है, फ्रेज क्या होते हैं? हाफ इनकम्प्लीट सेंटेंस विदाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट. मैंने फ्रेजेस इधर आपको लिख दिए हैं. आपका काम ये है कि आप इन फ्रेजेस की मदद से पूरा आंसर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करें. ठीक है, अब ये फ्रेजेस आप दो तरीकों से कर सकते हैं. या तो मुझे सुन के आप लिख लें, या इन फ्रेजेस को देख देख के फटाफट चैप्टर में से आंसर्स निकाल के उसको मार्क कर लें. ठीक है, मैं बहुत स्लो स्पीड से बोलती हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर सकें. ठीक है, उसके अलावा ये बोर्ड पे भी हैं, आप मुझे पॉज करके भी इनके आंसर्स ढूंढ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. The first question is, what type of land is Arabia? Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. It is known for its trackless deserts and dazzling blaze of tropical sun. Right? Answer is in the first paragraph of your unit. You can find it there. Second is, why was the Holy Quran sent in Arabic? ठीक है, इसका आंसर सेकेंड पैराग्राफ में है. The Holy Quran was sent in Arabic because Arabs possessed a remarkable memory and the art of eloquence. Since the language of Arab was Arabic, so the Holy Quran was sent in Arabic as Allah has chosen it for His final dispensation and the preservation of His word. Question number 3. For which ability were the Arabs famous? Answer. The Arabs were famous for their eloquence and remarkable memory. Question number 4. What was the condition of mankind before Rasul sallallahu alaihi wasallam? Now I could have written this question on the other side and written the answer under it, but I wanted to explain something to you. That's why I have written it over here. अब द कंडीशंस ऑफ अरब जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, हम लिख सकते हैं. जो चीज़ नोटिस करने की है वो ये है कि यहाँ पे मैंने SAW लिखा है. जैसे ही आप SAW पढ़ेंगे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेगा. अगर आप इसकी जगह PBUH लिखते हैं, पीस बी अपॉन हिम, तो वो इफेक्ट नहीं होता. तो आपने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना है तो आपने SAW लिखना है, PBUH नहीं लिखना. मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स.
जब भी उनका जिक्र हो तो दुरूद पढ़ो, और जब भी उनका नाम लिखा जाए तो SAW लिखो, PBUH नहीं लिखना, पीस बी अपॉन हिम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Alright, so let's do the answer. Let's read out the answer. Let's read out the phrased incomplete answer, and we are going to phrase it out and construct the complete sentences. G. Before the arrival of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, before the first revelation, the country of Arab, the situation of Arab was very pathetic. They were at the verge of chaos. It seemed that a civilization that took 4,000 years to be constructed and to grow had started to crumble at that specific point. ठीक है? Question number 5. Why did the Rasul sallallahu alaihi wasallam stay in the cave of Hira? The Rasul sallallahu alaihi wasallam stayed in the cave of Hira because he wanted to remember Allah Almighty. He stayed there in the remembrance of Allah Almighty and he wanted to meditate in the solitude. देखो वहाँ पर जाके नबी करीम इस्लाम तो आया नहीं था, नमाज तो हुई नहीं थी. नबी करीम वहाँ जाके गौर व फिक्र करते थे कि अगर आप इब्राहीम के रब हैं तो आप कौन हैं, कहाँ हैं. ठीक है, बिकॉज उनको आइडोलेट्री पे बिल्कुल यकीन नहीं था. रब्बुल आलमीन ने बेटा उनको लास्ट प्रॉफिट सिलेक्ट किया था, इसलिए वो बचपन से ही और बड़े होकर जवान होकर भी इसी बात पे गौर व फिक्र करते थे कि अगर रब्बुल आलमीन हैं तो वो कहाँ हैं. ठीक है, और उनको वो सॉलिट्यूड मिलता था केव ऑफ हिरा में, जहाँ जाके वो ये मेडिटेशन करते थे, सॉलिट्यूड में बैठते थे. What was the first revelation? The first revelation is written in your textbook. Arabic मत लिखना, बेहुरमती होती है. We don't know where the paper will go. So you'll write the translation from the book, and the translation is: read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed wood. Read, and thy Lord is most bountiful. He taught men with the use of pen. He taught men what he knew not. आपकी बुक में लिखा है, मैंने ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में सुना दी है. कॉपी एंड पेस्ट बुक से करनी है. Why did the pagan Arabs threaten the Rasul sallallahu alaihi wasallam? अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा. अरब्स ने हरम के अंदर 360 बुत रखे हुए थे. जो मक्का है, इट्स नॉट अ फर्टाइल लैंड. वहाँ पे पानी सिर्फ आबे ज़मज़म का है, कुछ उग नहीं सकता. ठीक है, उनकी जो इकोनॉमी थी वो खाली जो लोग हरम को, खाने काबा को विजिट करने आते थे, उनके पैसों से, वो जो वहाँ स्पेंड करते थे, जो खाते पीते थे, जो रहते थे, उनसे उनकी इकोनॉमी बेस्ड थी. अब उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट बुत रखे हुए थे और लोगों को ये सुपरस्टिशन दी हुई थी कि फलाना बुत आपकी फलानी ख्वाहिश को पूरा कर देगा और ये वाला बुत आपकी ये वाली ख्वाहिश को पूरा कर देगा. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने बुत परस्ती को बिल्कुल निगेट कर दिया. ठीक है, और उन्होंने कहा कि तमाम लोग बराबर हैं. जबकि अरब्स अपनी सुपीरियरिटी पे बहुत नाज करते थे. वो ये कहते थे कि हम चूँकि कीपर्स ऑफ द होली काबा हैं तो वी आर द बेस्ट वंस. हरम तो बेटा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब तामीर किया था तब से ही सीक्रेट था. तब से लेके generations to generations everybody knew that it was a sacred place. जब उसको रिकंस्ट्रक्ट किया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तो it was considered as a sacred place. तो अरब्स को ये लगा कि उनकी जो डोमिनेंस है, जो उनकी इकोनॉमी है, वो थोड़ी सी शेकी हो जाएगी. ठीक है, और वो बिल्कुल इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के लिए तैयार नहीं थे. ये वजह थी कि उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग निगेट किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को. The pagan Arabs threatened the Rasul's uncle because the belief in the oneness of Allah threatened their dominance in the Arab Peninsula, and they wanted the Holy Prophet and his followers to renounce their acceptance of Islam and start idol worshipping. It's mentioned in the book. I have given you the complete answer as well. You can work in both ways. What did Hazrat Aisha say about the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam?
Hazrat Aisha Raziyallahu Ta'ala anha said about the life of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. Embodiment क्या है? Reflection, तस्वीर, अक्स. ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का मुकम्मल अक्स थे. अल्लाह ने हुक्म भेजा, नबी ने करके दिखाया. तो कुरान और सुन्नत दोनों साथ साथ हैं, दोनों के बगैर इस्लाम कंप्लीट नहीं है. कुरान के साथ सुन्नत, सुन्नत के साथ कुरान. ठीक है, दिस इज अ कंपल्शन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू इन द नेक्स्ट बोर्ड. जी, ये बोर्ड पे है आपके लिए एडिशनल क्वेश्चंस, बॉक्स क्वेश्चंस, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव कम इन द प्रीवियस पेपर्स. ठीक है, तो इस वजह से मैंने उनको कलेक्ट करके आपके लिए बॉक्स क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए. वी डोंट वांट टू लूज एनी मार्क्स. ठीक है, हमने कोई लूप होल नहीं छोड़ना, कोई मार्क लूज करने की गुंजाइश नहीं छोड़नी. आपके 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आपने आउट ऑफ 8. ठीक है, तो उन 5 क्वेश्चंस के टोटल मार्क्स हैं 10. ईच क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स. इन मार्क्स को लूज करने की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मक्का सिचुएटेड? मक्का इज सिचुएटेड 50 miles फ्रॉम द रेड सी. What type of competition was held at Ukaz? Ukaz is the name of a place and a poetic competition was held at Ukaz every year. ठीक है, जहाँ बड़े बड़े अरब शोरा, बड़े बड़े eloquent speakers आते थे और अपना कलाम पेश करते थे. What was the mission of the Rasul sallallahu alaihi wasallam? The mission of the Rasul sallallahu alaihi wasallam was to destroy the nexus superstition. Superstition क्या होता है? वहम. ठीक है, आपको ये वहम होता है कि कौवा बोल रहा है तो घर में मेहमान आएंगे. ठीक है, तो वो नेक्सस इट लीड्स फ्रॉम वन टू अनदर. नेक्सस क्या होता है? एक इवेंट जो एक और इवेंट को और एक और इवेंट को और एक और इवेंट को लीड कर रहा हो, उसको बेस बना रहा हो, चेन बना रहा हो. तो वो सुपरस्टिशन, एक चीज पे आपने वहम शुरू किया तो आप हर चीज पे वहम शुरू करते जाएंगे. Okay, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had the mission to destroy the nexus superstition and to eradicate ignorance and disbelief. He wanted to set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. ठीक है, हेयर आफ्टर की फिक्र. हमने हमेशा तो यही नहीं रहना ना, हमको आखिर तो रब्बुल आलमीन के सामने पेश होना है. ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आखिरत की फिक्र कर रहे थे. डिवाइन ब्लिस, जन्नत के हसूल के लिए हमको सीधा रास्ता दिखा रहे थे. ठीक है, what did the pagan Arabs send a delegation to Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle? We have discussed its answer. Initially, they had sent a delegation because they wanted the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his followers to renounce Islam and to start up idol worshipping. ठीक है, ये हमने बॉक्स क्वेश्चंस कर लिए. अब आपकी एक्सरसाइज जो शुरू हो रही है उसमें सबसे पहले होती है आफ्टर क्वेश्चन आंसर्स वोकैबुलरी. वोकैबुलरी मैंने बोर्ड पे लिखी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए में आपसे कहा गया है कि जो गिवन वर्ड्स है इनके सिनोनिम्स लिखें. सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी गिवन वर्ड की एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं. दे मीन द सेम, नॉट डेफिनेशन. डेफिनेशन होती है फ्रेज, a group of words that actually describe what this word mean. Synonym words वो होते हैं जो आपके given word की same meanings रखते हो, जैसे dazzling, glaring. Okay, the dazzling sun blocked our vision. ठीक है, the glaring sun ने हमारा vision block कर दिया. मैं आपको word, उसका synonym और sentence सब दे रही हूँ. पेंसिल उठाओ और फटाफट लिखना शुरू कर दो. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये सिनोनिम और ये स्पेलिंग्स आपको पता है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकती हैं, तो साथ साथ स्पेलिंग्स भी चेक करो इन वर्ड्स की, साथ साथ इनके सिनोनिम्स भी चेक करो और साथ साथ सेंटेंस भी कंस्ट्रक्ट करो. इमेजिनेशन, कंसेप्शन. His vivid imagination has enabled him to draw the exact picture of the scenery. Remarkable, exceptional. He has been given a remarkable skill of drawing, composed, created or wrote down.
he has composed a new anthem for the event of Independence Day or for the event of 14th August. Preservation, protection. Allah has promised the preservation of Holy Quran himself. Message, intimation. My mother sent me a message to complete my homework, otherwise I will not be allowed to go to the party. Bestowed, granted. The feeling of compassion was bestowed on Abdul Sattar Eidhi by Allah Almighty. Superstition, irrationality. We must not believe on superstition as it usually leads from one problem to another. Abandon, leave. You must abandon your careless attitude if you want to succeed in your life. Vocabulary, exercise 1. I've given the meanings of the given words. I have constructed the sentences for you. Let's move on to exercise 2 or exercise B of vocabulary. एक्सरसाइज बी में आपको ये कहा गया था कि या प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के ये जो गिवन वर्ड्स हैं इनसे नए वर्ड्स बनाएं. ठीक है, मैंने वो प्रीफिक्स और सफिक्सेस लगा के आपके वर्ड्स बना दिए हैं. प्रीफिक्स कहते हैं जो लेटर्स आप वर्ड के शुरू में ऐड अप करें ताकि उस वर्ड की मीनिंग बदल जाए, और सफिक्स यही होते हैं जो लेटर्स आप वर्ड के एंड में लगाएं ताकि वर्ड की मीनिंग्स चेंज हो जाए. वन का बनाया है सफिक्स नेस लगा के, वननेस. बिलीफ, डिसबिलीफ. ठीक है, डिस मैंने लगाया है प्रीफिक्स. पैरेलल, अनपैरेलल. जस्टिस, इनजस्टिस. फ्लिंचिंग, अनफ्लिंचिंग. नॉलेज, नॉलेजेबल. कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, मैंने आपको नए वर्ड्स बना दिए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस लगा के. नेक्स्ट इज योर एक्सरसाइज सी. उसमें आपको कॉलम दिया हुआ है, 3 कॉलम्स दिए हुए हैं जिसमें आपसे ये कहा गया है कि आपने कॉलम ए के मीनिंग कॉलम बी में से फाइंड आउट करके कॉलम सी में लिखने हैं. मैंने फाइंड आउट करके बोर्ड पे रख दिए हैं. आप कॉलम ए देखते देखते कॉलम सी में उसकी मीनिंग्स फिल इन कर ले मेरे साथ साथ. हर वर्ड का मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करूंगी. स्पेलिंग्स आप याद करेंगे ताकि इनके सिनोनिम्स अगर आए ऑब्जेक्टिव पेपर में, इनकी स्पेलिंग अगर आए ऑब्जेक्टिव पेपर में, तो यू आर वेरी क्लियर ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन और दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, राइट? चार्म, अट्रैक्शन. द चार्म ऑफ द सेलिब्रिटी विल नेवर फेड ऑफ. कंपोज, राइट. I want to compose a new song for the Independence Day. Civilization, culture. Ancient civilization of Mohenjo-daro was very progressive, advanced. Faith. The base of Islam is its faith in the oneness of Allah. Eradicate. We must eradicate poverty in order to be a successful nation. ठीक है? Eliminate. Embodiment, living example. The Holy Prophet ﷺ is the embodiment of the Holy Quran. Chaos, confusion. As our teacher left the classroom, the entire class was set into chaos. Verge, edge. Humanity was at the verge of chaos before the advent of Islam. Eloquent, fluent. My Urdu teacher is quite eloquent. We love when she recites the poetry of Ghalib. Bestowed with, confer as a gift. My friend is bestowed with the skill of eloquence. He is a fantastic debater. Demolish, destroy. Wabda has decided to demolish all the encroachment in our society. Proselytizing, preaching. The Holy Prophet ﷺ was given the responsibility of proselytizing Islam. Everlasting. The message of Allah Almighty is everlasting. Wonder, surprise. He was left in wonder when his mum
hinted that she is going to buy him something that he loves. Dignity, pride. We must, as Pakistanis, work up on our dignity and do not do some menial or wrong things. Alright? So quickly recapitulate today's lesson. What did we do? We did the question answers which are present at the end of the textbook from Unit 1, the Savior of Mankind. We did additional question answers and we did vocabulary. और vocabulary के मैंने ना सिर्फ आपको meanings और synonyms दिए बल्कि मैंने आपको sentence construction भी करके दी. I hope that you have written everything side by side in your notebook. I hope that you will study and I hope that by this time you have specifically scheduled your academic calendar and following it. By that time, फायज़ा नदीम को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह हम लोग दोबारा मिलेंगे अपने नए लेक्चर के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपने नोट डाउन कर लिया होगा और जब तक आप मुझसे दोबारा मिलेंगे आपने इसको प्रिपेयर कर लिया होगा कि जिस दिन हम जो चीज़ पढ़ें उसी दिन याद कर लें तो वो पक्का पक्का याद हो जाता है. ह्यूमन माइंड इज़ अमेजिंग. ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़.